sows more will that reap. God may make all grace abound towards you, so that you may have all things all the time. You may have abundance for every good thing. When you start to sow in God's house, God makes His grace abound towards you, so that you have abundance for all good things all the time. जब आप परमेश्वर के घर में बोने लगते हैं तो आपके पास हर समय बहुतायत का अनुग्रह होता है कि आप हर समय सब कुछ भले काम के लिए बहुतायत से रखें अपने पास. Then you have not given by faith. तो फिर आपने विश्वास से You नहीं gave because everyone else was giving, and some people give out. दूसरा वाला क्या देखेगा कि इसने दिया नहीं. No. और कुछ लोग इस मारे देते हैं कि what will my neighbor think. Understand, it's not about money, it's about your training. तो ऐसा मुद्दा नहीं है, आपका प्रशिक्षण यहाँ पे मुद्दा है. क्या होगा, आज भी मुझे याद है जब मेरी पहली सैलरी 1800 या 2500 ऐसे कुछ थी, मैं जाता था एटीएम से वो निकाला, लिफाफे के अंदर डाला, मैं अपने घुटनों पे आके, मुझे आज भी याद है, मैं परमेश्वर के पास कहता, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, ये मेरा प्रिविलेज है प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरे राज्य में बोने वाला एक बन सकता हूं. और उसके साथ में जाता था फिर एक्साइटेड होके कि आज अपना दशमांश प्रभु के भवन में बोऊंगा. I still remember when I got my first salary, I took the money out and put it in an envelope, and I said, Lord, it's my privilege that I can be a partaker of your kingdom, that I can sow into your kingdom. And with that expectation, I would go into His house to sow my seed. Amen. परमेश्वर विश्वास योग्य है अपने वचन के लिए. God is faithful for His word. कई मसीह लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और ये ऑब्लिगेशन नहीं है, समझो इस बात को, जबरदस्ती नहीं है, पर मैं प्रकाशन की बात कर रहा हूं. उन्होंने उदारता नहीं सीखी, वो दशमांश नहीं बोते कलीसिया में, और वो सोचते हैं बहुत स्मार्ट हैं वो. Some people, some believers have not learned generosity. They don't even tithe in their church, and they think they're very smart. No. With all thy getting, get understanding. अगर कुछ पाना ही है तो समझ को प्राप्त कर ले. आपको लगता है पॉल झूठ बोल रहा है वहां पे? You think Paul is कहता है जो थोड़ा बोएगा lying here? वो थोड़ा काटेगा, He says he who sows little तो will ज्यादा reap little. बोएगा वो ज्यादा He काटेगा. who sows more will That reap. God may make all grace abound towards you, so that you may have all things all the time. You may have abundance for every good thing. When you start to sow in God's house, God makes His grace abound towards you, so that you have abundance for all good things all the time. जब आप परमेश्वर के घर में बोने लगते हैं तो आपके पास हर समय बहुतायत का अनुग्रह होता है कि आप हर समय सब कुछ भले काम के लिए बहुतायत से रखें अपने पास. Amen. मेरा ये कमिटमेंट है इस साल का. आप अपना देखो, मैं कह रहा हूं प्रभु मैं 10 गुना बोऊंगा, जो मैंने पिछले साल बोया उससे 10 गुना ज्यादा तेरे राज्य में इस साल बोऊंगा, क्योंकि हमारा जीवन एक बढ़ता हुआ जीवन है. This is my commitment. You see your commitment, but my commitment is I will give 10 times more than what I did last year, because our kingdom is a growing kingdom. I will never allow anybody in this church to be a bigger giver than me. And मैं कुछ सुनाने के लिए कोई बात नहीं बता रहा हूं आपको. That's my commitment. ये मेरी कमिटमेंट है कि इस कलीसिया में मैं मेरे से बड़ा किसी को गिवर होने नहीं दूंगा. I jealously will fight for it. मैं ईर्ष्या से लड़ूंगा उस बात के लिए. Amen. Because I know what I have reaped. क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या फसल काटी है उसकी. Amen. So generosity, not by compulsion, not by. अच्छा मैं एक बात कहता हूं आपको, अगर हम अगले संडे से ऑफरिंग बंद कर दें, ना लें बिल्कुल भी, बोले ही ना कोई ऑफरिंग के लिए, जब वो लोग बोएंगे वो असली बोने वाले हैं. If we don't take offering from next Sunday, if we remove the offering time from the service, the people that will sow then are the real. वो असली बोने वाले हैं, क्योंकि वो प्रेशर में नहीं, क्योंकि अरे बाल्टी आ गई है, बाल्टी में डालना है कुछ. They are not under any pressure or bucket is coming. I have to put something. Paul says to the church, you prepare your gift beforehand. Paul कलीसिया से कहता है पहले से अपने गिफ्ट तैयार रखो. Because जब आप अपने भेंट पहले से तैयार रखोगे तो कोई कंपल्शन नहीं है. When you prepare your gift आप from beforehand, विश्वास के साथ उसको लेकर आ रहे हो. there is no compulsion. You are bringing it by faith. Amen. Amen. All right, verse 5. 5वीं आयत. And that is serving God with all your heart. 5वां पॉइंट, आप परमेश्वर की सेवा करें पूरे दिल से. Serving God with all your heart. पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करें. John 12:26. यूहन्ना 12 उसका 26. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor.
यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तो पिता उसका आदर करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, मनुष्यों का आदर एक बात है, मगर जिस व्यक्ति का आदर परमेश्वर करने लग जाता है ना, वो वर्ड्स में, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जब परमेश्वर आपका आदर करेगा, ऐसे टेबलों में बैठोगे आप और ऐसे कमरों में जाओगे जहां कभी सोच नहीं सकते थे। It is one thing when man honors you, but when God starts to honor you, you will sit on tables and enter into rooms where you could have never reached on your own. Nobody is beyond serving. कोई भी सेवा करने से बड़ा नहीं हो गया है। और कलीसिया, आज मैं आप सबसे ओपनली बात करना चाहता हूं। And I want to talk to all of you openly today, church. मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है I don't know why this कि happens. जब लोग मसीह में आ जाते हैं तो उनका पूरा सेवा का भाव खत्म हो जाता है। That when people come to Christ, all their serving heart is lost. पहले तो अमरनाथ पैदल जाते थे, अभी यहाँ पार्किंग में बोल दिया गाड़ी लगाने के तो लड़ते हैं, Earlier they would go to Amarnath walking, and now if you tell them park the car in the parking, they will लड़ाई fight. करते हैं। वहां हमें पैदल जाना पड़ेगा यहाँ तक, They'll say we'll have to come walking till here. एस्केलेटर लगा देते हैं आपके लिए। क्या मतलब, कहां गया हमारा सेवा भाव मसीह? क्या हमारा सेवा भाव आज बढ़ना नहीं चाहिए? Where is our serving heart? Should it not increase now? मैं सच देख रहा हूं, मैं जब गुरुद्वारे में देखता हूं, अपने सरदार भाई लोगों को देखता हूं, मैं जब उनका सेवा भाव देखता हूं, अरे कलीसिया को सीखने की जरूरत है उनसे। When I see in the Gurudwaras our Sardar brothers, the way they serve, I say the church needs to learn from them. मर्सिडीज से बंदा उतरेगा, नीचे बैठ के बाहर जूते पॉलिश कर रहे हैं, A guy comes out of the Mercedes, sits on the floor and starts to polish shoes. और आज मसीहों को क्या हो गया है? What has happened to believers? कहां से इतना घमंड आ गया भाई हमारे अंदर? Where has such arrogance come from? कि हम सेवा नहीं कर सकते अपने पिता के घर में? Can we not serve in our Father's house? क्यों ऐसा हो गया हम लोगों के साथ? Why has this happened? पहले तो पैदल चल जाएंगे, अभी यहाँ 10 कदम पार्किंग से आने में लड़ाई लड़ेंगे। Earlier they would walk for so long, and now they will fight for 10 steps to walk in from the parking. क्या सच में हमारा व्यवहार मसीह जैसा है आज? Is really our behavior like Christ? Serving protects our heart. सेवा करना हमारे दिल को बचा के रखता है, उसकी सुरक्षा करता है। इतना इंपॉर्टेंस मत दे दो अपने आप को कि सेवा ना कर पाओ प्रभु की। Don't give yourself so much importance that you cannot serve the Lord. अगर जूते उतार कर मिट्टी में घुटना नहीं टेक सकते आज, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस, क्या जीवन है फिर वो? If you can't remove your shoes and come to your knees to serve Him, then there is no use for life. This is my desire. ये मेरी चाहत इस है। घर का अगुवा होते हुए मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, As the leader of ये this house, I'm requesting. इनविटेशन न्योता आपको दे रहा हूं। मैं चाहता हूं इस घर का हर एक सदस्य सेवा करे इस घर में। This invitation I'm giving to you, I want every member of this house to serve. अरे मैं देख रहा था जब राधा स्वामियों का सत्संग होता है, I was seeing in the वसंत Radha कुंज तक वॉलंटियर खड़े हैं। There were volunteers till Vasant Kunj. वसंत कुंज तक, Till Vasant Kunj. यहाँ पे लोग गेट के बाहर होते हैं, And here people हम outside. गेट के बाहर में खड़ा करते हैं। Oh, they made me stand outside the gate. अरे क्या हो चुका है? What has happened? What's wrong? दिक्कत क्या है? What's wrong with our attitude? हमारे रवैये में दिक्कत क्या है? आप जानते हैं अभी क्या हो रहा है? 10% लोगों ने भार ले रखा है पूरी कलीसिया का। You know what's happening? 10% people have taken the entire burden of the church. वही लोग सुबह 7 बजे आते हैं, These people, they come at धुंध 7 in the हो, morning, whether fog, बरसात हो, rain, धूप हो, sun. उन्हीं लोगों पे आप लोग चिल्लाते हो। You come and shout on those 10% people. Can I speak the truth in this सच कह place? सकता हूँ यहाँ पे? वही लोग जो सुबह 7 बजे आते हैं, The same people that 5 come at बजे 7. 4 बजे उठते हैं घर से, कई लोग 5 बजे निकलते हैं, इतनी दूर से आते हैं, Wake up at 4 or सुबह 5 सुबह come. 7 बजे आते हैं, Come here at 7. बिना नाश्ता करे हुए, बिना खाना खाए, Without eating anything. वही लोग बाहर सिक्योरिटी में खड़े, उन्हीं लोगों के ऊपर आप लोग 11 साढ़े 11 बजे आके चिल्लाते हो, उनको डांटते हो। They stand outside and serve, and you come at 11:30 and shout at them. वो आपकी डांट भी खाते हैं, गांव वाले गाली देते हैं, They listen to you shouting मसीह at के लोग them. गाली देते हैं, The village people धूप use में curse खड़े हैं words. पूरे टाइम, They are standing कोई in the पानी sun. पूछने के लिए नहीं है, कोई चाय पूछने के लिए No नहीं one to offer them water or anything. है। कीचड़ में खड़े हैं, पूरे पांव जूते कीचड़ में भर गए, Standing in the mud, covered in mud. धूप में पूरी धूप में खड़े हैं, ठंड में पूरी ठंड में Standing in खड़े the sun, standing in the cold. अरे वही लोग हैं। They are the मैं same जितने people. टाइम से
5 साल से देख रहा हूं मैं, वही 5 लोग हैं जो चेयर लगाते हैं हर सैटरडे को आके। I have been seeing from 5 years, the same 5 people come and put the chairs every Saturday. आप आते हो, बैठ जाते हो चेयर में, साफ चेयर है, You come and sit on a clean chair. किसी ने तो लगाई है आपको। Somebody put it for you. कोई चर्च से उनको सैलरी थोड़ा ना मिल रही है, They don't get any salary from the church. वो तो सेवा कर रहे हैं अपने पिता की। They are serving their father. कहाँ है बाकी बेटे और बेटियां इस घर के? Where are the rest of the sons and daughters of the house? क्यों नहीं वो सेवा कर सकते? Why can't they serve? क्यों केवल 10% भार लेंगे, बाकी 90%? Why only 10% take the burden of the rest 90%? वो बोलेंगे पार्किंग जी बंद है, आप प्लीज यहाँ पे भूम गाड़ी भगाए। तू जानता है मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और तू मूर्ख है, और ये है तू मूर्ख आदमी है। They will say the parking is closed, please park there, and they will ram the car in and they'll say you don't know who I am, you're a fool. फिर लड़ेगा उन लोगों से, And they will fight with them. मूर्ख आदमी, That fool, घमंड से भरा हुआ। filled with pride. अरे आपकी मदद के लिए खड़े हैं वो लोग। They are standing there to help you. अगर साथ में सेवा नहीं कर सकते तो उनकी सेवा को कठिन तो मत बनाओ। If you can't serve alongside them, don't make their serving difficult. मैं प्रभु से बोल रहा हूं, प्रभु ये मेरी इच्छा है, तू मन बदल इन लोगों का कि हर कोई सेवा करे 2026 में। I'm saying, Lord, you change their hearts that everybody would serve in 2026. अरे उनके भी कपड़े गंदे होते हैं भाई, उनको भी धूप लगती है, उनको भी ठंडा लगता है। Even their clothes get dirty, they feel cold, they feel hot in the sun. कोई तो कभी बर्डन लो उनका कि कभी वो लोग भी अंदर आके एक बार वचन सुन सके। Somebody take their burden so they can also come in and hear the word. कोई तो बेटा और बेटी इस घर का बोले, इस संडे मैं प्रभु मैं तैयार हूं बलिदान करने के लिए, मैं खड़ा हूंगा धूप में कि जो मेरे भाई लोग 3 साल से 5 साल से खड़े हैं वो अंदर आके एक बार वचन सुन सके। Let somebody take that burden and say, my brothers that are standing outside from 5 years, 3 years, I will take their burden, they can come and hear the word. चर्च में सच में आपसे बोल रहा हूं आज, I'm telling you the truth. स्वर्ग में नहीं मिलेगा ये करने को। You won't get this privilege It's in here. heaven. It's here. इट्स हियर। यहाँ पर ही मिलेगा. ऐसे मेरी सेवा शुरू हुई थी। This is how my चर्च service में started. सुबह जाता था, झाड़ू मारता था, पूछ आपको आइडिया नहीं है जो पिता के घर में सेवा करता है आगे कहां जाता है वो। I would go to church early morning, clean the house, clean the church. You have no idea those who serve him where they go in their life. अगर सारे बेटे और बेटियां खड़े हो जाएं तो हम रोटेशन में हर कोई वचन सुनता है। If- आपकी हर एक 2 महीने में 5-6 हफ्ते में एक बारी आपकी ड्यूटी होगी। मगर सोचो क्योंकि कोई नहीं है, वही लोग खड़े हैं बाहर, वही 20-25 लोग हैं। If all the sons and daughters start to serve, everybody will be in rotation and everybody can get to hear the word inside. But because there are not enough, the same 20-25 people are standing outside and serving every week. मैं देख रहा था, मैं नहीं जानता उन 2 बेटियों को। जिस दिन क्रिसमस था रात को 11 बजे 2 बहनें, वो नॉर्थ ईस्टर्न है, मुझे नहीं पता वो कौन है, दे वर क्लीनिंग द चेयर्स। ठंड हो गई, केवल दोनों अकेली साफ कर रही हैं। मेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो उनको खुल्लम खुल्ला रिवॉर्ड देगा। I don't know who those two daughters are, those precious sisters. They were out in the cold on Christmas Day at 11 p.m. before the Christmas program, and they were cleaning chairs in the cold. My Father who sees in secret. कुछ लोग आते हैं 12 बजे, कहते हैं कैफे क्यों बंद किया, खाना नहीं है कुछ, खाने के लिए खाना चाहिए हमें। Some people come at 12 and they say the cafe is closed. We want to eat food. We want food. Why is the cafe closed? रोड के ना उस पार है होटल, There is a hotel. ये प्रभु का घर है। होटल जाना है बाहर मेन रोड में है। There is a hotel on the main road opposite side. If you शायद want to go to a थोड़ा hotel, go confusion there. हो गया है। I think there's some confusion. This is the house of कुछ God. लोग होटल सोच के आ गए यहाँ पे। Some people came thinking this is a पड़ोसी hotel. को बोलो ये होटल नहीं है। Tell your neighbor this is not a hotel. फिर से बोलो, Tell them this is not a hotel. बोलो ये प्रभु का घर है। Say this is the house of God. ओ हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। चर्च एक अलाइनमेंट लेकर आते हैं, Bring in a line. गलत व्यवहार हटाते हैं अपने जीवन से, Remove every wrong घमंड behavior from अहंकार हटाओ अपने जीवन से। Remove every arrogance and pride. from कोई your life. कलीसिया में इतना बड़ा नहीं कि सेवा ना कर सके। There's no one so great in the church that they cannot serve. और जो कहता है ना कि जानता है मैं कौन हूं, वो कौन है? मूर्ख है। And he who says, do पूरी you know चर्च who को I पता am? लग गया। अब कोई भी बाहर आके आज के बाद बोले आपको तू जानता है मैं कौन हूं, कहना मैं जानता हूं तू कौन है। तू मूर्ख आदमी एक नंबर का। If you see anyone outside the church saying, do you know who I am? Tell them we know who you are. You're a fool.
क्योंकि ये घर बेटे और बेटियों का है। Because यहाँ this- ये हम परिवार हैं एक। This house belongs to sons and daughters. This is a family. Amen? अगर लड़े हो ना कभी सिक्योरिटी, आज जाते हुए थैंक यू बोल के जाना उनको। If you've ever fought with the security guys on your way out today, thank them. और जिन सिक्योरिटी वालों ने बदतमीजी करी आपसे, उनको भी मैंने बहुत टाइट किया है। And any तो आपके साथ भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता मैं। any security guys that were rude to you, I have also given them a good one. I will not tolerate that with you. ओके, ये घर पिता का घर है, हर एक सदस्य आदर के योग्य है। This house is the house of the Father. Every member is honorable. आमीन। मगर इस साल But this year, हम सब सेवा करेंगे। we all will serve. बोलो, मैं अपने पिता के घर में सेवा करूंगा। Say, I will serve in my Father's house. आमीन। मगर मेरे पास आके ये मत बोलना कि मुझे गिटार बजाना है। ये बहुत है गिटार बजाने वाले। Don't come and tell me I want to play guitar. There are many guitarists. अभी गिटार बजाने वालों की जरूरत नहीं है। We don't need guitarists. बहुत right लाइन है अभी लंबी now. There's a गिटार। huge line right now. जो बाहर खड़े होना चाहते हैं ना, वो आना। Those who want to जो stand सच में outside. सेवा करना चाहते हैं ना, जब दिखता नहीं है, जहां पिता गुप्त में देखता है, वो लोग आना। Those who really want to